Hello to all MSc Microbiology students. Welcome to the another video lecture of your fungal systematics and extremophiles. As you all know, we have studied the cultivation as well as the isolation and the enrichment of the different type of the extremophiles, and here we are going to see the one more type of the same category of the microorganisms, how they are being grown and cultivated as well as enriched in the laboratory. While studying the extremophiles, while studying their properties as well as while studying their mechanisms of adaptations in different environments, we didn't saw a type of the bacteria which was methanogens. We didn't heard about it, or we have included it in the thermophiles. Okay, but in your syllabus the different point is given, that is the methanogen, isolation and cultivation. Okay, the different point is given in your syllabus to how to cultivate the methanogens, how to isolate them, how to enrich them. So we will firstly see what are the methanogens, then we will see what are their properties, and then afterwards we will see how to cultivate and how to isolate them. Okay, so without wasting any further time, let's start. So since their name indicates they are methanogens, that means what they are going to do something related to methane. Okay, now methanogens. Okay, genesis, generally what we say, genesis means the procedure or something is being performed. Okay, these methanogens are the organism, they are involved in the process known as the methanogenesis, which means the formation of the methane. Generally these methanogens, they are the very diverse group of the archaea, okay, as well as the bacteria, that means prokaryotic organism, and they are the one जो strictly anaerobic होते हैं, उनको air is not going to help them anyway. Okay, in fact if they come under the aerobic condition, they are not going to be survived. They are strictly anaerobic, anoxic. Okay, that's why उनको ग्रो होने के लिए they require the kind of the anaerobic conditions. Okay, so here this methanogenic bacteria and particularly the methanogenic archaea, because वो archaea class को belong करते हैं, एक डाइवर्स ग्रुप है, उसमें वैरायटी के आपको ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, एंड उनका एक अब ऑब्वियस सी बात है, उनको एक्सट्रीमोफाइल्स में कैटेगराइज किया गया. दैट मीन्स दे हैव दैट स्ट्रेन्स जो एक्सट्रीम कंडीशंस में भी ग्रो होते हैं. टेम्परेचर हो सकता है, पीएच हो सकता है, इवन दी ऑस्मोटिक प्रेशर, एक्सट्रीम ऑस्मोटिक कंडीशंस. ओके, तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो ऐसे कंडीशंस में ग्रो होते हैं, एंड सो दैट कि ये ऐसे कंडीशंस में ग्रो होते हैं, इसलिए उनको एक्सट्रीमोफाइल्स में कैटेगराइज किया गया है. ओके, अब तक हमने इनके बारे में मैंने आपको ना बताया था ना, शायद हमने उनको थर्मोफाइल्स में देखा था, बट सेपरेटली भी उनको कैटेगराइज किया गया है. वो एक टाइप के बैक्टीरिया नहीं बल्कि आर्किया है. ओके, आर्किया है, वो डाइवर्स है, वो एनारोबिक कंडीशंस में ग्रो होते हैं, उनको एरोबिक कंडीशंस बिल्कुल भी नहीं सूट होता. दे आर नॉट गोइंग टू सर्वाइव एनीवे. ओके, सो यहाँ पे अब तक लाइक 50 जो है स्पेसीज अभी तक प्रोवाइड किए गए या फिर डिस्कवर हुए हैं. दे आर द मिथेनोजेंस, एंड अगेन दे आर मोस्टली बिलोंग टू दी, जब जितने भी अभी तक डिस्कवर किए गए हैं 50 हो या जितने भी हो, वो अभी तक तो आर्किया में ही है. आर्किया, उनका कोई अलग ग्रुप नहीं बनाया गया है, उनको आर्किया क्लास में डाला गया है. ठीक है, अलॉन्ग विद दैट इनका अगर हम फिजियोलॉजिकल फीचर्स की बात करें तो दे आर कोकाइड, दैट मीन्स दे आर स्पेरिकल इन द शेप, और दे मे बी द रॉड शेप. ओके, दैट मीन्स बैसिलाई. नाउ एरोबिक एनारोबिक की बात अगर हम करते हैं, मतलब दे ऑब्वियसली आर नॉट गोइंग टू ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन. द ऑक्सीजन इज़ वेरी मच टॉक्सिक टू देम. आपको पता होगा एनारोबिक कंडीशन जब हम बात करते हैं तो इट मीन्स कि उनमें ऑक्सीजन को लाइक ज़्यादा विसे ऑक्सीजन लेवल्स को वो टॉलरेट नहीं कर पाते. दैट मीन्स कि उनके लिए वो टॉक्सिक है, क्योंकि उनमें जो है एंजाइम्स नहीं, ऐसी जो ऑक्सीजन के जो टॉक्सिक इफेक्ट्स होते हैं जनरली बैक्टीरिया पे होते ही है, लेकिन जो नॉर्मल एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं उनमें एबिलिटी होती है कि वो जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो फॉर्म होता है ऑक्सीजन की वजह से, उसको वो लोग कैटेलाइज कर पाते हैं यूजिंग द कैटेलेज एंजाइम. ठीक है, बट इनमें वो एंजाइम ही नहीं होती एनारोबिक्स में, तो इसलिए ये लोग जो है ऑक्सीजन को सर्वाइव नहीं कर पाते, ऑक्सीजन को टॉलरेट नहीं कर पाते. दैट्स वाई ये एनारोबिक होते हैं. ठीक है, अब इनमें एक, अब आर्किया में क्यों इनको प्लेस किया गया है या बैक्टीरिया में नहीं है ये लोग, क्योंकि इनमें पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं है. जो जनरली बैक्टीरिया में हम जब स्टडी करते हैं तो बैक्टीरिया में क्या होता है कि इनके ऊपर एक पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर होती है बैक्टीरिया में, बट ये जो मिथेनोजेंस है इनमें वो लेयर नहीं
है, इनमें कोई पेप्टिडोग्लाइकन लेयर नहीं है, इसकी वजह से इनको एक अलग ग्रुप में डाला गया, दैट इज़ द आर्किया और द मिथेनोजेंस, ठीक है। एंड हाँ, एक है कि इनमें कोई ऐसे मिथेनोजेंस है जिनमें पेप्टिडोग्लाइकन की जगह पेप्टिडोग्लाइकन जैसे दिखने वाली एक लेयर है, दैट इज द सूडो पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है। सूडो मतलब फॉल्स लेयर, थोड़ी सी मिलती जुलती पेप्टिडो से, ठीक है। देन और इनमें जो है एक तो होती ही नहीं पेप्टिडोग्लाइकन, हुई तो सूडो पेप्टिडोग्लाइकन होती है, बट इनमें एक लेयर होती है दैट इज़ द एस लेयर, जो मैंने आपको एक्सट्रीमोफाइल बैक्टीरिया के जब एडाप्शन सिखाए थे तब उसमें था कि एस लेयर होती है, दैट इज़ द पैराक्रिस्टलाइन लेयर, जो उनको प्रोटेक्शन देती है इन द एक्सट्रीम एनवायरमेंट। तो ये लेयर मिथेनोजेंस में होती है इंस्टेड ऑफ दी पेप्टिडोग्लाइकन, इसकी वजह से इनको एक्सट्रीमोफाइल्स कहा गया है, ठीक है। यू कैन रिमेंबर दिस पॉइंट। और एक बात याद रखो कि आर्किया होते हैं वो यूजुअली एक्सट्रीमोफाइल्स होते हैं, जो भी एक्सट्रीमोफाइल्स होते हैं वो जनरली आर्किया ही होते हैं, क्योंकि आर्किया अभी तक जितना भी स्टडी हुआ है, आर्किया जो होते हैं वो यूजुअली इतने एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया और जो भी आप फंगाई बोलो या फिर ईस्ट बोलो, उनसे ज़्यादा जो एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव कर पाते हैं वो जनरली आर्किया होते हैं, ठीक है। तो आर्किया जो होती है उनके ऊपर एस लेयर होती है, दैट इज़ द पैराक्रिस्टलाइन लेयर, जो हमने लास्ट टाइम भी देखा था एडप्शन के टाइम पे, जैसे मेश लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसकी वजह से प्रोटेक्शन मिलती है। क्रिस्टलाइन लाइक लेयर होती है, ठीक है, जिगजैग स्ट्रक्चर होता है। नाउ मिथेनोजेनिक की अगर बात करें तो इनमें एक एबिलिटी होती है मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया की कि ये मिथेनोजेनेसिस कैरी आउट करती है। आप कहोगे कि फ़ायदा क्या है मिथेनोजेनेसिस का, तो जो आजकल आप सुन रहे हो ग्रीन हाउस इफेक्ट करके, तो वहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट में हम क्या बोलते हैं कि वहाँ पे CO2 का जो अमाउंट है वो बढ़ रहा है एनवायरनमेंट की वजह से, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है। लेकिन ये जो बैक्टीरिया है मिथेनोजेंस, वो क्या करते हैं, जो CO2 होता है उसका फिक्सेशन करके मीथेन गैस बनाते हैं, जिसका हम फ्यूल प्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हैं, बायोगैस प्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हैं, इन पॉजिटिव वे यूज़ कर सकते हैं, जिससे बैलेंस बना रहे। तो ये कहीं ना कहीं मिथेनोजेंस हमारे एनवायरनमेंट के लिए एक बेनिफिशियल टाइप ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट ये जो बैक्टीरिया होते हैं, एज आई टोल्ड यू, ये क्या करते हैं, CO2 का कन्वर्जन फिक्स करके यूजिंग द हाइड्रोजन और H2O, ये मीथेन गैस में कन्वर्ट करते हैं। दैट्स व्हाट वी यूज़ फॉर द बायोगैस और दी, एज आई टोल्ड यू, कि ये बायोगैस प्रोडक्शन में या मीथेन गैस प्रोडक्शन में, जो बायोफ्यूल हम कहते हैं, उसके प्रोडक्शन में यूज़ होता है, ठीक है। अब ये मिलते कहाँ पे, इनका हैबिटेट कहाँ पे है, तो ये जनरली आपको बहुत से एडवर्स जगहों पे या डाइवर्स जगहों पे, आई वुड से रैदर, वहाँ पे आपको ये बैक्टीरिया ये आर्किया दैट इज़ द मिथेनोजेंस ईजीली मिल जाएंगे। तो ये लोग जो होते हैं ऑर्गेनिक मैटर्स पे, अब आपको पता है मीथेन गैस ऑर्गेनिक मैटर से प्रोड्यूस होता है, तो वो ऑर्गेनिक मैटर पे आपको मिल जाएंगे। डिकम्पोजिशन करने वाले बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अलॉन्ग विद दैट जो एनारोबिक डाइजेस्टर जो हम बायोगैस प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। एक्वाटिक जो सेडिमेंट्स होते हैं, जो नीचे एक्वाटिक जो आपके आई वुड से जो रिवर्स होती या फिर जो ओशन सी होते हैं, उनके जो डीप या फिर जो सेडिमेंट पार्ट होता है उसमें ये आपको मिलेंगे, ठीक है। देन सबमराइन वेंट्स में मिलेंगे आपको, ठीक है। देन दे विल बी फाउंड इन द जियोथर्मल स्प्रिंग, जो हमने हॉट स्प्रिंग्स देखी थी वहाँ पे भी आपको ये मिल सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने आपको पढ़ाया था तब, ये ऑर्गेनिज्म मैंने आपको थर्मोफाइल्स में भी बताए थे, ठीक है, क्योंकि ये वहाँ पे भी मिलते हैं, क्योंकि मैंने आपको अभी भी पता है कि डाइवर्स कंडीशंस में ग्रो होते हैं, हाई टेम्परेचर कंडीशंस में भी ग्रो हो सकते हैं, pH इवन एंड ऑस्मोटिक प्रेशर्स ऑल्सो, ठीक है। तो ये एक्सट्रीमोफाइल्स कैटेगरी में इसीलिए भी आते हैं। नाउ ये आपको एनिमल्स के इंटेस्टाइन में मिलते हैं, लाइक जो रूमिनेंट्स होते हैं, जो मैंने आपको बताया था, जो घास चरने वाले जो एनिमल्स होते हैं, उनके जो है इंटेस्टाइन में भी आपको ये मिल जाएंगे, गट में मिल जाएंगे। इवन जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके भी गट में आपको मिथेनोजेंस मिल जाएंगे। मैमलियन इंटेस्टाइन, हमारे भी इंटेस्टाइन में आपको मिथेनोजेंस मिल जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे एक्सट्रीम कंडीशंस होती है pH वगैरह की, एज वेल एज दी हीट, ओके। देन अलॉन्ग विद दैट आपको हमारे ओरल कैविटी, माउथ में भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। नाउ
ये जो मिथेनोजेंस है, एज आई टोल्ड यू, ये H2 या फिर CO2 की मदद से क्या करते हैं, मीथेन फॉर्म करते हैं, या फिर फॉर्मेट हो, एसीटेट आप इनको दे दो, मिथेनॉल दे दो और मिथेनोजेंस को डाल दो उस मीडिया में, यू विल गेट द मीथेन प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये इनका बहुत बड़ा वी कैन से एडवांटेज है कि ये मीथेन प्रोडक्शन में यूज़ होते हैं। नाउ अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें तो दे हैव गिवन 2 एग्जाम्पल्स, मिथेनोबैक्टीरियम ब्रियांटी, देन देयर इज मिथेनोकोकस डिलेटी। ओके, तो ये दोनों एग्जाम्पल है, और भी आपको मिल जाएंगे मिथेनोजेंस। अब इनका एप्लीकेशन तो हम डिटेल में भी स्टडी करेंगे। एक तो होता है मीथेन प्रोडक्शन, एज आई टोल्ड यू, बायोगैस प्रोडक्शन, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पे भी इनका बहुत बड़ा रोल है क्योंकि डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं। सो दे हैव ऑल्सो द रोल इन द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट ऑल्सो। ठीक है, देन आज हम देखेंगे कि ओके, द इम्पॉर्टेंट थिंग वी आर गोइंग टू स्टडी इज़ कि मिथेनोजेंस को लैबोरेटरी में कैसे कल्टीवेट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम इनका बायोगैस प्रोडक्शन में कैसे यूज़ करते हैं ये भी स्टडी करेंगे। बट अभी हम देखेंगे कि उनको लैबोरेटरी लेवल में अगर आपको कल्टीवेट करना है, आइसोलेट करना है, तो कौन से मीडियाज़ लगते हैं या फिर कौन से हमें चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, हम ये देखेंगे। तो आई हैव गॉट अ वेरी इंटरेस्टिंग रिसर्च पेपर रिगार्डिंग दिस एंड आई हैव यूज इट फॉर मेकिंग यू अंडरस्टैंड हाउ द मिथेनोजेंस आर बीइंग कल्टिवेटेड इनसाइड द लैब। ठीक है, या फिर उनको आइसोलेट या फिर एनरिच कैसे किया जाता है इन द लैब। तो जैसे मैंने आपको बताया मिथेनोजेंस आर द वेरी आई वुड से इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म, बिकॉज वो क्या करते हैं, CO2 का कन्वर्जन मिथेन में करते हैं एंड CO2 आर द वन हु कंट्रीब्यूट इन द ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट हम इसको बोल सकते हैं, वो रेड्यूस करने में हमारा कोई हेल्प कर सकता है, तो दैट इज़ द मिथेनोजेंस। ओके, तो इसलिए मिथेनोजेंस का रोल बहुत प्राइमरी है इन द रिडक्शन ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट। इन शॉर्ट, हम पोल्यूशन रिड्यूस करने में इनका रोल है। देन अलॉन्ग विद दैट, ठीक है, अभी ये हुई बात मिथेनोजेंस की। अभी हम इनको कल्टीवेट अगर हमें करना है या फिर जो हमें उनका आइसोलेशन करना है तो वो कैसे किया जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया स्ट्रिक्ट एनारोबिक है, तो वैसे हमको उनको रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि ऑक्सीजन फ्री उनको एनवायरनमेंट, सबसे पहली चीज़ तो ये है ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट उनको देना पड़ेगा। उनके जो सबस्ट्रेट होते हैं, एज आई टोल्ड यू, CO2 एंड H2, ये दोनों इनके सबस्ट्रेट होते हैं, तो हमें वो भी आप उनको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो इसलिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो जाता है फॉर द कल्टिवेशन, बट येस दे हैव द साइंटिस्ट हैव बीन contributed every new day the new research and the new technique which can make us make sure that we can cultivate this kind of extremophiles in the laboratory. Okay, तो यहाँ पे जो है हमें उनको ग्रो होने के लिए उनके सबस्ट्रेट्स उनको देने पड़ते हैं, लाइक हाइड्रोजन, फॉर्मेट, एसीटेट, मिथेनॉल, मिथेनामाइल, इनमें से कोई भी सबस्ट्रेट आप उनको दे सकते हो फॉर द ग्रोइंग, एज वेल एज एनारोबिक कंडीशंस में इनको रखना पड़ता है, दैट इज़ अ बिगर चैलेंज। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें मिथेनोजेंस की, तो इनका जो ग्रोथ इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो भी नॉर्मल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से थोड़ा ज़्यादा होता है, इनटू वीक्स हो सकता है, इनटू डेज हो सकता है। तो ये भी इनका एक जैसे हर एक्सट्रीमोफाइल का ये प्रॉब्लम होता है कि वो लोग थोड़ा स्लो ग्रो करते हैं। ठीक है, तो इनका भी यही है कि ये लोग भी बहुत स्लो ग्रो करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें एक्सट्रीमोफाइल्स की, तो इनका अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो ये लोग फ्लोरोसेंस इफेक्ट नहीं दिखाते। ठीक है, जैसे नॉर्मली कोई बैक्टीरिया होते हैं, अगर हम उनको फ्लोरोसेंस मतलब ऑक्सीडाइज स्टेट में जो होते हैं वो जनरली फ्लोरोसेंस दिखाते हैं, बट ये जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स, ये अगर उनको हम कुछ सबस्ट्रेट्स दे दें या फिर रिडक्शन हो जाए या कुछ हो जाए, देन ओनली दे शो फ्लोरोसेंस, नॉर्मली वो नहीं दिखाते अंडर द UV लाइट। नाउ इनमें एक और एबिलिटी है कि ये मिथेनोजेनिक जो आर्किया होते हैं जनरली, वो कुछ कोएंजाइम्स प्रोड्यूस करते लाइक F420 एज वेल एज कोएंजाइम यम। ओके, इनकी मदद से, कुछ टेक्निक की मदद से हम उनका आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं। नाउ इसके अलावा ये जो बैक्टीरिया है या फिर सॉरी ये जो आर्किया है मिथेनोजेंस, जैसे मैंने आपको बताया था CO2 का ये लोग यूटिलाइजेशन करते हैं, तो इनका जो स्टडी है वो जनरली किया जाता है फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर, सिक्विस्टेशन, यूटिलाइजेशन एंड कन्वर्जन। मतलब क्या कि CO2 का मीथेन गैस में कन्वर्जन करके फ्यूल यूटिलाइजेशन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये टेक्निक्स हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर द मीथेन प्रोडक्शन। इसका मतलब हम पॉजिटिव इफेक्ट कैसे कर सकते हैं, दैट वी आर गोइंग टू सी हियर। ओके, देन नाउ मिथेनोजेंस। ओके, तो अब मिथेनोजेंस को ऑब्वियसली बात है हमें लैब में कल्टीवेट करना है, तो कुछ चीज़ों की आपको अर्जेंटली रिक्वायरमेंट लगेगी, दैट इज़ द मीडिया, देन सैम्पल एनरिचमेंट,
then how we can enrich the sample, then how to grow them, how to purify them. These are all the things that we need to understand before going towards the like मेन बायोगैस प्रोडक्शन. हमें ये पता करना है कि हमें लैब लेवल पे अगर इनको स्टडी करना है तो हम कैसे कर सकते हैं. ठीक है, फॉर दैट थिंग ऑफ मैटर आज हम देखेंगे कि कौन से मीडिया कहाँ से आप लोग सैम्पल जो है वो ले सकते हो. ये सब हम चीज़ें आज यहाँ पे देखेंगे. तो जो सैम्पल पहले चीज़ तो ये कि आइसोलेशन के लिए हमें या कल्टीवेशन के लिए वी नीड अ सैम्पल फॉर कल्टीवेशन. ओके, फॉर दैट पर्पज़ सैम्पल कौन सा लेना है. फिर कोई भी आप इकोलॉजिकल नाइक यूज़ कर सकते हो, रिवर हो सकता है, सेडिमेंट, सॉइल, जहाँ पे भी आपको लगता है आपको थर्मोफाइल्स मिल जाएंगे इन द एक्सट्रीम कंडीशन, जहाँ पे मेथेनोजेंस मिल सकते हैं, ऐसे एनवायरमेंटल नाइक से सैम्पल आप ले सकते हो. ठीक है, अब सैम्पल लेने के बाद आपको करना ये है कि उसको स्ट्रिक्टली एन एरोबिक कंडीशन में ले जाना है. ठीक है, तो इसकी वजह से क्या करना है आपको एक सैम्पल को जो है वी हैव टू स्टोर इट इन द वेरी असेप्टिकल कंडीशन. ये तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन उसके अलावा प्री गैस्ड आपको ये क्या कंडीशन है, तो उसमें आपको CO2 गैस एज वेल एज जो नाइट्रोजन है उससे आपको उस कंटेनर को फिल करना है सैंपल डालने के बाद. ठीक है, उसके बाद आपको उसको सील करके एकदम टाइट कंटेनर आपको लैब में लेके आना है. दैट विल बी द एनएरोबिक कंडीशन दैट यू आर गोइंग टू प्रोवाइड फॉर द कल्टिवेशन और द सैम्पलिंग. ओके, सैम्पलिंग के टाइम पे भी आपको हो गई सैम्पलिंग के टाइम पे क्यों आपको एनएरोबिक कंडीशंस रखनी है. तो यस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि सैम्पलिंग करना भी तो क्या हो सकता है सैम्पल कंटामिनेट हो सकता है, या फिर हो सकता है कि वो जो सैम्पल है इट मे नॉट बी एबल टू कीप दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें आइसोलेट करने उनको ज़िंदा रखने के लिए ज़्यादा देर तक हमें पहले जो सैम्पल है उसको अच्छे से जो है सैम्पलिंग करनी पड़ेगी उसकी, एंड देन स्टोरिंग भी उतनी ही अच्छे से करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको उनको लैब में ले जाना है सैम्पल्स को. तो बी केयरफुल रिगार्डिंग दैट. देन अब दूसरी चीज़ हमें जो ज़रूरत है वो है ग्रोथ मीडिया की, कि अब हमने सैम्पल्स लाए तो हमें उनको ग्रो करने के लिए कौन सा मीडिया लगता है या कौन सा हमें एनवायरनमेंट उनको प्रोवाइड करना पड़ता है. ठीक है, तो अब आपको मैंने जैसे बताया था कि इनको ग्रो होने के लिए वी नीड टू गिव देम वेरी स्ट्रिक्ट एनारोबिक कंडीशन, मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन का पॉइंट नॉट % भी नहीं चाहिए. तो इतना स्ट्रिक्ट कंडीशंस आपको लगती है तो आप सोच सकते हो वैसा कंडीशन जो हम, अब आपको पता है ऑक्सीजन इज़ अ ओमनी प्रेजेंटिंग जो हम अवॉइड नहीं कर सकते, बट यस आप उनको लैब में कल्टिवेट करने के लिए कुछ टेक्निक्स यूज़ कर सकते हो जहाँ पे आप उनको ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट दोगे. अब वो कैसे मैं आपको बताऊँगी. तो एज आई टोल्ड यू वो बहुत सेंसिटिव है ऑक्सीजन को लेके, तो दैट्स वाई वी नीड टू परफॉर्म देम कल्चर देम यूजिंग डिफरेंट टेक्निक. तो एक वे है जो बताया है एक साइंटिस्ट ने, दैट इज़ द हंगेट साइंटिस्ट ने एक टेक्निक बताई या ग्रोथ मीडिया बताया है जो हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द आइसोलेशन प्योरिफिकेशन पर्पज़. तो वो मीडिया जो होता है जो मिलर एंड वॉलिन इन लोगों ने मॉडिफाई करके बनाया है. ठीक है, तो ये मीडिया आप यूज़ कर सकते हो. तो अब वो मीडिया जो है उसको आपको एक बॉटल्स होती है ना, सीरम बॉटल छोटी छोटी आपने देखी होगी, वो जो डॉक्टर के पास मिलती है, वायल्स होती है, वो सीरम वायल्स में आपको उनको डालना है, अच्छे से सील करना है ब्यूटिल रबर स्टॉपर की मदद से, एंड आफ्टर दैट एल्यूमिनियम सील भी करना है आपको उनको. ठीक है, देन आइसोलेशन के टाइम पे या फिर आप जो सैम्पलिंग करते हो उसके टाइम पे भी आपको, जैसे आपने किया था CO2 H2 का गैस आपने उसमें डाला था, वैसे आपको यहाँ पे भी प्री गैस करना है. ठीक है, और ये गैस फेज़ आप उसको या फिर हम जो गैस फेज़ बनाते हैं उससे क्या होता है कि एनारोबिक कंडीशन वहाँ पे बन जाती है. ठीक है, तो यहाँ पे वो कंडीशंस आपको मेंटेन करना इज़ इम्पॉर्टेंट. देन अब सैम्पल का एनरिचमेंट कैसे करना है. ओके, आपने ग्रोथ मीडिया बनाया है जो साइंटिस्ट हंगेट ने एक मीडिया दिया हुआ है, हंगेट मीडिया, जो आपको यूज़ करना है फॉर द कल्टिवेशन. नाउ इसके बाद आपको सैंपल को एनरिच करना है. ठीक है, एनरिचमेंट करना है, तो इट इज़ अ वेरी टेडियस टास्क. तो एनरिच करने के लिए आप यूज़ करोगे सोडियम बाइकार्बोनेट मीडियम. ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट मीडियम में आप लोग सैंपल को इनोकुलेट करोगे, उसके बाद उसको इंक्यूबेट करोगे एनारोबिक कंडीशंस में 37 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 डेज. एज आई टोल्ड यू बहुत टाइम लगता है इनको ग्रो होने के लिए, तो 15 डेज तक आप उनको इंक्यूबेट करोगे. आफ्टर दैट
उनका इन्यूमरेशन करना है आपको, ठीक है। इन्यूमरेशन करने के बाद आपको जब लगे कि हाँ भाई अब बहुत सारे ग्रो हो चुके हैं, हम टर्बिडिटी वगैरह ऑब्जर्व करते ही हैं और उसके साथ साथ मीथेन गैस प्रोडक्शन वगैरह भी हम देखते हैं, तो उससे हमें पता लगता है कि कितने बैक्टीरिया ग्रो हुए हैं। तो उससे क्या करेंगे हम, उन बैक्टीरिया को अब आपको क्या करना है, अभी उन बैक्टीरिया को आपको आइसोलेट करने के लिए उनको थोड़ा सा वैसे सीरियल डाइल्यूशन टाइप करना है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन डाइल्यूशन, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। तो यहाँ पे भी आपको एक्सटेंशन डाइल्यूशन की मदद से जो है बैक्टीरिया को आइसोलेट करना है, ठीक है। मतलब एक सेल, लास्ट के ट्यूब में आपको कितने सेल्स मिलेंगे, एक सेल मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे आपको उसको आइसोलेशन करना है। अब एनरिचमेंट हो गया, ठीक है। अब उसका प्योरीफिकेशन, मतलब मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया जो है वो ही आपको चाहिए, बाकी के बैक्टीरिया नहीं चाहिए। तो या सॉरी, मिथेनोजेनिक आर्किया ही आपको चाहिए, बाकी के आर्किया आपको नहीं चाहिए, बाकी के बैक्टीरिया आपको नहीं चाहिए। तो प्योरीफिकेशन अभी तक हमने किया नहीं, अभी तक हमने एनरिच कर लिया है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा हमने अगर प्योरीफाई किया है तो इट इज़ बाय दी एक्सटेंशन डाइल्यूशन मेथड। अब अगर हमें प्योरीफाई करना है इन द नेचुरल वे, तो वहाँ पे भी एक टेक्निक है, हम जो पहले भी साइंटिस्ट ने दी थी, हंगेट साइंटिस्ट ने जो हमें मीडिया दिया था, उन्होंने एक टेक्निक दी है, तो उसको बोला जाता है रोल ट्यूब टेक्निक, ठीक है। रोल ट्यूब टेक्निक से आप लोग इसको जो है प्योरीफाई कर सकते हो, इवन एनरिच भी कर सकते हो चाहिए तो क्या करना होता है, रोल ट्यूब टेक्निक मतलब क्या, बस एक ट्यूब्स होती है जो जनरली ऐसे बॉटल के जैसी होती है, ठीक है। उनमें हम क्या करते हैं, उनमें जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मीडिया सॉलिडिफाई होता है, ठीक है। सेमी सॉलिड मीडिया होता है, नॉट कंप्लीट सॉलिड, तो थोड़ा सा सेमी सॉलिड मीडिया होता है एंड उस पर हम गैसिंग करते हैं, ठीक है। जैसे हमने वहाँ पे किया था प्री गैस जैसे करते, तो वैसे ही करना होता है। इनॉकुलेशन के बाद उस पर प्री गैस करना पड़ता है, मतलब उसमें गैस डाल के अच्छे से सील करना पड़ता है और फिर इंक्यूबेट करना पड़ता है, तो वैसे ही करते हैं। उसके बाद वहाँ पे जो है कॉलोनी आपको दिखेगी और उसमें से एक कॉलोनी आपने केयरफुली पिकअप करनी, ठीक है। इनॉकुलेशन के लिए केयरफुली पिकअप करनी यूजिंग नीडल, ओके। नीडल का भी एक एंड जो होता है वो बेंड होता है, वो एक अलग टाइप की नीडल यूज़ करते हैं, तो वो नीडल की मदद से आपको वो कॉलोनी पिकअप करनी है एंड फ्रेश मीडियम में ऐड करनी, ठीक है। क्योंकि आपको प्योर कल्चर चाहिए, तो फ्रेश मीडियम में ऐड करने के बाद अगेन प्री गैस कंडीशन एंड अगेन देन इंक्यूबेशन एंड देन आपको टाइम टू टाइम चेक भी करना है कि, और फ्रेशली जो बाइकार्बोनेट मीडिया होता है, फ्रेशली आप इनोकुलेट करते रहो ताकि आपके पास वो प्योर कल्चर मेंटेन भी रहे, ठीक है। इजीली मिलता नहीं है, अब आपके पास प्योर कल्चर भी चाहिए आपको उसका फर्दर स्टडी करने के लिए, तो आपको वो मेंटेन भी करके रखना है, ठीक है। तो मीडिया कौन सा ज़रूरी है, बाइकार्बोनेट मीडिया, एक तो हंगेट ने दी हुई टेक्निक है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। देन कौन सी टेक्निक जो जनरली प्योरीफिकेशन में यूज़ होती है, दैट इज़ अ रोल ट्यूब टेक्निक। रोल ट्यूब टेक्निक की मदद से आप लोग जो है मिथेनोजेंस को कल्टीवेट कर सकते हो। फॉर दैट थिंग ऑफ मैटर यू नीड अ रोल ट्यूब टेक्निक। तो उसमें क्या किया जाता है, एक ट्यूब होती है, बस उसमें मीडिया डाला जाता है, उसमें आपको इनोकुलेट करना है सैंपल को, और उसके बाद एक सिंगल कॉलोनी जो आए उसको आप आइसोलेट करके फ्रेश मीडिया में डाल के प्योरीफाई भी कर सकते हो, ठीक है। और उसको स्टोर करने के लिए आप स्मॉल स्मॉल आगार ट्यूब्स बनाओ और स्टोर कर लो, ठीक है। नॉर्मल आगार भी लगता है इनको, बाकी इतना कुछ कॉम्प्लिकेशन है नहीं। तो चीज़ें आपको कौन सी याद रखनी, और हाँ एक बात याद रखना कि इनको टाइम टू टाइम आप लोग देखोगे कि प्यूरिफाइड कॉलोनी भी मिथेनोजेनिक ही है कि नहीं, ये सब भी आपको मॉनिटरिंग करना पड़ता है। बट अभी जो आपके सिलेबस में है इट इज़ आइसोलेशन एंड एनरिचमेंट। तो आपको याद क्या रखना है कि सैम्पलिंग करते वक्त ध्यान रखना है कि एनारोबिक कंडीशंस मेंटेन हो, इंक्यूबेशन करते वक्त भी आपको कंडीशंस वो रखनी होती है मेंटेन, ठीक है। देन मीडिया, बाइकार्बोनेट मीडिया, हंगस्टेन मीडिया आप यूज़ कर सकते हो, अलॉन्ग विद दैट प्री गैस कंडीशंस आपको हर वक्त याद रखनी है, ठीक है। देन रोल ट्यूब मेथड से आप लोग इसको प्यूरिफाई कर सकते हो एज वेल एज दी एक्सटेंशन डाइल्यूशन की मदद से, ठीक है। मीडिया आप बाइकार्बोनेट मीडिया याद रख सकते हो फॉर द मिथेनोजेंस। सो दैट इज़ इट। इस तरह से आप लोग जो है मिथेनोजेंस को लैब में कल्टीवेट कर सकते हो। इसके अलावा मिथेनोजेंस बायो गैस या फिर मीथेन प्रोडक्शन में कैसे हेल्प होते हैं हम ये भी स्टडी करेंगे इन द एप्लीकेशन पार्ट। अलॉन्ग विद दैट अगले लेक्चर्स में हम लोग इसके बाद वाला पार्ट स्टार्ट करने वाला, दैट इज़ द एप्लीकेशन पार्ट। इसके बाद हम जो भी आज तक हमने कल्टीवेशन आइसोलेशन देखे, जिन भी एक्सट्रीमोफाइल्स के आइसोलेशन टेक्निक्स देखे, एनरिचमेंट टेक्निक्स देखे, उनके हम लोग अब से एप्लीकेशन स्टडी करेंगे कि ये लोगों को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, या फिर साइंटिस्ट ने इन लोगों का क्या क्या एप्लीकेशन अभी तक
किया है, ठीक है. सो दैट these things we are going to study in the further lecture. So I hope you have understood the methanogens. I will forward you the notes regarding this, since that book is not having these notes, so I will forward you the research paper regarding this. And along with that, if you have any query related to this point or any point of the cultivation, because here we are concluding the cultivation and isolation part, or isolation and enrichment part I would say. तो ये यहाँ पे हम लोग वो पॉइंट कंक्लूड करने वाले हैं. तो आपको अगर इस पॉइंट से रिलेटेड any doubt or any query if you have, you can contact me and ask me, okay. And yes, if you are having any problem regarding the notes also, please do contact me, okay. Thank you so much. Keep watching.